Morning, students. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Today, first time there are 58 students. Yes, sir. Okay, thank you. Today, first time there are 58 students who have joined the meeting. Very good. So, ये हमेशा क्यों नहीं होता फिर? हमेशा टीचर्स को बोलना पड़ता है ज्वाइन मीटिंग इमीडिएटली. अच्छा, ये आज लेक्चर लेट स्टार्ट हुआ इसीलिए हुआ क्या? Is it? No, sir. 57, 58. Okay. Yesterday, there was some offer from my side to you people, isn't it, about the attendance? But you people misused it. बहुत से लोगों ने उसे मिसयूज किया, ऐसा मैंने देखा है. आप जिस दिन प्रेजेंट नहीं थे लेक्चर में, आपने प्रेजेंट मार्क के नहीं किया है चैट बॉक्स में, फिर भी आप लोगों ने गूगल फॉर्म में एंट्री कर दिया है अटेंडेंस की. सो आई एम क्वाइट अपसेट फॉर दैट. मैंने आपके बारे में सोचा बट आपने उसका अनड्यू एडवांटेज लिया. सर, जस्ट अ मिनट, लेट मी फिनिश. नाउ what I will do, I will consider your chat box attendance. आपने chat box में दिया होगा, very good. Then I will consider your that day's attendance. Suppose if we have conducted lecture on 15th of February, for an example, okay, 15th of February we have conducted an lecture and you have marked your attendance on 15th only, then it will be considered. But no attendance will be considered which is marked later on. 15 के बाद में जो भी अटेंडेंस आपने मार्क किया है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल कल अगर आपने मार्क किया है उस 15 के दिन के लिए, then it will not be considered. So many people you have misused the offer. That is the thing from my side. If you want to speak, you can. sir, Yes. sir, I was unable to mark my presentee yesterday because I went to the hospital due to some reason. Sir, I was unable to mark my attendance. Okay, if it is about yesterday it was open till 4 o'clock. So you could have done till 4 o'clock. So, sir, I was still in 6 o'clock hospital till 6 o'clock. Have you attended the lecture? Yes, sir, I have attended. Okay. सर, मैंने कल के लिए मार्क किया था बट उसके पहले वाले लेक्चर के मार्क करना मैं भूल गया सर. मैं हाँ तो ठीक कल है, मैंने घाई में बस एक कल का ही मार्क कल किया था. वाला कर दिया है, देन नो प्रॉब्लम. पहले वाला जो है आपने अगर चैट बॉक्स में किया होगा देन इट विल बी कंसिडर्ड. चैट बॉक्स में अगर नहीं किया होगा देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड. चैट बॉक्स में किया था मैंने. हाँ. नाउ एनीवन हैज एनी पॉइंट रिगार्डिंग दिस? Yesterday, one of your friend has called me. I will not take his name, and he asked. He was saying that की सर मी प्रेझेंट होतो, बट मी त्यावेळेस नेटवर्क इश्यू होता आणि म्हणून मी चॅट बॉक्स मध्ये पण नाही मार्क केला आणि गुगल फॉर्म मध्ये पण नाही मार्क केला. सो यू टेल मी हाउ कॅन आय ट्रस्ट on this particular calls or on this particular input? So it is barely that it is a lie that you could not marked yourself present in the chat box, you could not mark yourself present in the Google form. So that is your mistake. I had given you people ample of time to mark yourself present in the chat box as well as in the Google form, and it hardly takes 120 seconds, 2 minutes. It hardly takes 120 seconds. And उस 120 सेकंड में ही अगर आपका नेटवर्क इशू होता होगा then that is a big problem. So kindly solve that particular problem. Okay. Now any one of you, see today's attendance participants are 80. Really very good. So बताइए, और किसी को कुछ कहना है? सर, Yes. यूनिवर्सिटी का सर्कुलर आ गया है ना?
about वो एग्जाम के बारे में no today we the paper article is there. In that paper article, syllabus is mentioned only, and I have not gone through that paper article. But what I have heard that 70% of syllabus is there, which I have already informed you. कि हमारे 1 2 3 4 ये 4 यूनिट रहेंगे, बट स्टिल वी आर वेटिंग फॉर द ऑफिशियल सर्कुलर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी साइड. अथर्व यही पूछ रहे थे आप? हाँ यस सर. Okay. Anything you want to ask? Anybody? Sir. नो सर. Yes. Sir, रोहन पवार, don't mark yourself present. रोहन पवार आहेस का बाबा? रोहन पवार आहेस का तू? Don't mark yourself present in the chat box. This system is stopped from yesterday. Yes, there was some sound. Yes. sir, Yes. sir, scholarship बद्दल काही विचारायचं होतं. No, or you can ask that thing with the Shinde sir, because I am not right Okay, person sir. to comment on it. I don't have any little information I do have. So my request is regarding scholarship, you can ask Shinde sir. Yes, anything? Okay, sir. Anything related with the SME and related with me, related with the attendance, कुछ भी अगर है तो सर एग्जाम डेट एग्जाम सर? डेट बेटा हम भी वेट कर रहे हैं. यूनिवर्सिटी सर्कुलर आने दो, उस टाइम पे पक्का पता चल जाएगा हमें. बट टेंटेटिवली व्हाट वी हैव हर्ड 10 तारीख से होगा, 10 अप्रैल से. ओके और कुछ पूछना है किसी को? सर यस. जैसे यूनिवर्सिटी की एग्जाम होती है वैसे आप हमारी क्लास टेस्ट ले सकते हैं क्या फॉर जी प्रैक्टिस? जी जी जी. सैटरडे के दिन हमारी यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 के ऊपर एग्जाम है, विच इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड. सो यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट. ओके सर. ओके. और कुछ? Anything else? See, one more thing I will like to share. The kind of what we can say, हम लोग जो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं वो गूगल फॉर्म के ऊपर कंडक्ट करते हैं, और यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी उसका एक अलग सिस्टम है. सो देयर विल बी डिफरेंस इन द सिस्टम. गूगल फॉर्म और वो उनका सिस्टम, इन दोनों में डिफरेंस रहेगा, बट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ ऑप्शंस, दैट विल रिमेन सेम. वो सब सेम रहेगा. ठीक है. इस गूगल फॉर्म में आपको इमीडिएटली आंसर्स पता चल जाते हैं या फिर आपको अपना स्कोर पता चल जाता है. ठीक है. बट वहाँ पर वैसा नहीं होगा. जब यूनिवर्सिटी रिजल्ट डिक्लेयर करेगी तभी आपको रिजल्ट पता चलेगा. ठीक है. और सबसे मेन चीज़, डोंट ट्राई टू डू एन माल प्रैक्टिस. मतलब कोई कुछ क्वेश्चन है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ क्लच बिफोर इंजन आफ्टर फ्लाईव्हील, ये 2 ऑप्शन है. सो डोंट ट्राई टू गो इनटू द गूगल में जाके आप सर्च करोगे. ठीक है. वो हो नहीं पाएगा. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, अगर हो भी रहा है देन यू विल बी कॉट. आपका आप जो माल प्रैक्टिस कर रहे हैं वो पकड़ी जाएगी. सबसे मेन चीज़, वेबकैम कंपलसरी ऑन होना चाहिए, ऐसा उनका कहना है. सो डोंट डू और डोंट थिंक दैट कि आप कुछ भी माल प्रैक्टिस कर लोगे या फिर आप 4-5 स्टूडेंट मिल के इकट्ठा बैठोगे और वो आप एग्ज़ाम दोगे. ऐसा नहीं हो पाएगा. सो डोंट फॉल इन दैट. आप थरोली पढ़ाई करो अच्छे से और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो. ओके. शैल वी स्टार्ट अवर सेशन, टुडे सेशन? इफ यू डोंट हैव Yes, एनी sir. डाउट. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Now, today I hope you can see the PPT. Yes, sir. Okay. So today we are going to discuss the vehicle specifications. Now, first of all, this is new word, specifications. So what do you understand by this specification? बताइए. स्पेसिफिकेशंस मतलब क्या? A specific thing in vehicle. A specific thing in. Particular thing in vehicle. Okay. Detail information. Detail information. Okay.
बाय द वे कभी गलती से आपने फ्लिपकार्ट अमेजोन ऐसे वहां पर गए होंगे कभी वो साइट पे या फिर वो ऐप पे गलती से? Yes, sir. Okay. Yes, sir. तो वहाँ पे स्पेसिफिकेशंस लिखा होता है, देखा है कभी, पढ़ा है कभी? Yes, sir. Suppose Yes, sir. if you want to buy a mobile, say let me ask this question particularly. कौन हमेशा नहीं भूलता है? हाँ, गणेश तांबळे. गणेश आहेस का? गणेश, are you there? Ganesh, are you there? Yes, sir. So can you tell me that you want to buy a mobile? Okay, तुला एक मोबाईल परचेस करायचा आहे. कसा परचेस करशील किंवा कुठला मोबाईल परचेस करशील? Speak loudly. मोबाईल शॉपिंग मध्ये देऊन मोबाईल शॉपिंग मध्ये जाशील. ओके, व्हॉट यू विल आस्क हिम? मोबाइल चाहिए. मोबाइल चाहिए. ओके, वो पूछेगा कौन सा मोबाइल? वो पूछेगा कौन सा मोबाइल चाहिए, तो आप क्या बताओगे? इस मनी रेंज में जो है दिखाओ अच्छा वाला. हाँ, रेंज में. सो वेरी फर्स्ट थिंग what you have defined the range, means you are defining your cost. आप कितना कॉस्ट बेयर कर पाओगे. so you can say that मुझे 10,000 से लेके 20,000 तक की रेंज में एक मोबाइल दिखाओ. so very first thing, first specification of a mobile is range. very good. second, तो उसने बताया ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है. तो नेक्स्ट आपका क्या रहेगा? मुझे क्या चाहिए? मोबाइल के फंक्शंस जो अच्छे वाले होते हैं. फॉर एग्जांपल चाहिए जो. फॉर एग्जांपल कैमरा क्वालिटी, बैटरी बैकअप. सो वन थिंग, कैमरा स्पेसिफिकेशंस आप बताओगे कि मुझे 48 मेगापिक्सल वाला कैमरा चाहिए. ठीक है, तो व्हाट इज सेकंड थिंग, 48 मेगापिक्सल, दैट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ मोबाइल. थर्ड थिंग, आप बताओगे कि मुझे ये कंपनी का चाहिए, XYZ कंपनी, उसका आप नाम लोगे. सो थर्ड थिंग कैन बी योर कंपनी नेम. सो दैट इज थर्ड इज द स्पेसिफिकेशन इज द कंपनी नेम. अब ये गणेश के लिए ये थर्ड लेवल पे रहेगा कंपनी. किसी बंदे के लिए फर्स्ट के लिए रहेगा, वो बोलेगा मुझे ये XYZ कंपनी ही चाहिए और बाद में प्राइस वगैरह बताएगा. सो स्पेसिफिकेशंस सीक्वेंस मे वेरी अकॉर्डिंग टू द नीड. ठीक है. देन नेक्स्ट आगे आप जाओगे, आप बोलोगे मुझे इतना रैम चाहिए. ठीक है, सो रैम कैन बी द स्पेसिफिकेशन. नेक्स्ट और आप अगर आगे जाओगे तो सो storage can be the specification. So this is what is the on a broader way specification and specifications of a mobile. Now you can mute yourself. Okay, so on a broader way this is what is the specification of an mobile. So have you understood what is exactly specification? Yes, sir. यही अगर आप इसमें जाते हो फ्लिपकार्ट पे या फिर अमेजोन के ऊपर, वहां पर आप किसी भी अगर प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हो, से यू हैव सिलेक्टेड रेफ्रिजरेटर, तो वहां पर रेफ्रिजरेटर के स्पेसिफिकेशंस आपको नजर आएंगे. जस्ट फॉर एन फन यू कैन गो थ्रू इट. 6 यूनिट में हमें ये पढ़ना था, बट अभी 6 यूनिट इज आउट ऑफ सिलेबस, बट जस्ट फॉर एन फन यू कैन गो थ्रू इट. या फिर कभी भी, नाउ यू आर एन इंजीनियर और you are going to become an engineer. So whenever you are talking, you should be talking in terms of specifications. मुझे ये चाहिए, तो ये मुझे इस कंपनी का चाहिए, इस टाइप का चाहिए. Okay, so that should be the your language. Okay, now we are connecting this specification with an vehicle specification. तो vehicle में कौन कौन से specifications हो सकते हैं? रफली मैंने यहाँ पर कुछ जॉट डाउन किए है, बट कैन वी डिस्कस दिस? बताइए, व्हाट कैन बी द वेरी फर्स्ट व्हीकल स्पेसिफिकेशन? Model. Average. Type. सबसे पहला वाला स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए? Cost. Type. Processor. इंजन. प्रोसेसर. Mileage. Average. Average. Brand name. All these are relative terms which can Capacity. First in is company name.
ओके ओके, कंपनी वेट वेट, सी आप जो अभी तक बता रहे हैं वो सब कुछ सारी चीजें हैं वो इंडिविजुअल्स के ऊपर डिपेंड रहेगी। कोई बंदा बोलेगा मुझे ए कंपनी पसंद है, कोई बोलेगा बी कंपनी पसंद है, किसी की रिक्वायरमेंट पावर की होगी, किसी की रिक्वायरमेंट माइलेज की होगी। सो इट मे वेरी, बट योर वेरी फर्स्ट स्पेसिफिकेशन शुड बी आपको कौन सा व्हीकल लेना है, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, 6 व्हीलर, 8 व्हीलर, दैट शुड बी योर फर्स्ट स्पेसिफिकेशन कि मुझे क्या परचेस करना है। If it is 2 wheeler, then in 2 wheeler you can have different specifications. Are you getting me? अगर आपने कुछ डिसाइड ही नहीं किया कि मुझे 2 व्हीलर लेना है या फिर 4 व्हीलर लेना है, then you may land up into the various specifications. आपके पास बहुत ज्यादा स्पेसिफिकेशंस आ जाएंगे या फिर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो you have to be specific, मुझे 2 व्हीलर लेनी है, so in that 2 व्हीलर, और मुझे या फिर 4 व्हीलर लेनी है, so in 4 wheeler I can I can restrict myself in the 4 wheeler specifications. Are you getting me? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Yes, sir. So very first thing, what you want, whether you want a 2 wheeler or whether you want a 4 wheeler, that is what is your first specification. Then secondly, vehicles manufacturer name, आपको कौन से ब्रांड का व्हीकल परचेस करना है। सो वेरी वन कैन से आई वांट टाटा, वन कैन से आई वांट मारुति, मर्सिडीज, एनीथिंग, ठीक है, जो भी आपका चॉइस रहेगा, बट दैट इज व्हाट इज द योर नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन। देन इफ यू हैव सेलेक्टेड अ पर्टिकुलर ब्रांड, in that particular brand they may have various products, okay, in that particular product what is the model number, ठीक है, so that particular model number will be the exact specification, ठीक है। the next is nothing but the engine specification, आपको इंजन में क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इसके बारे में डिटेल हम लोग थोड़ा आगे पढ़ेंगे, what are the exact engine specification, और ये थोड़ा फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, so we will discuss this in detail later on. Then next is the type of fuel used. अब देखो ये कैसे डिपेंडेंट है, अब 2 व्हीलर में do we have option for this? In case of 2 wheeler, do we have option for fuel use? No. No. In case of 4 wheeler, we do have. So Yes. 4 व्हीलर में हमें ऑप्शन है, हमें पेट्रोल यूज करना है, सीएनजी यूज करना है, डीजल यूज करना है, एलपीजी यूज करना है, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए, ठीक है। सो वी डू हैव ऑप्शन फॉर दिस, सो दिस इज अनदर स्पेसिफिकेशन। देन ट्रांसमिशन, ये ट्रांसमिशन चाहिए नहीं चाहिए, गियर बॉक्स चाहिए नहीं चाहिए, सो विद गियर विदाउट गियर, दिस वी हैव ऑप्शन इन 2 व्हीलर। 4 व्हीलर में भी ये ऑप्शन है विद गियर विदाउट गियर, बट देर आर वेरी लेस प्रोडक्ट्स ऑफ विदाउट गियर 4 व्हीलर, ठीक है। देन गियर बॉक्स स्पेसिफिकेशंस, गियर बॉक्स में एग्जैक्टली आपको कौन सा वाला चाहिए, दैट ऑप्शन वी डू हैव। देन व्हाट सॉर्ट ऑफ एन क्लच टाइप वी डू हैव, क्लच टाइप में कौन सा वाला क्लच चाहिए, दैट इज द स्पेसिफिकेशन। देन ब्रेकिंग सिस्टम में आपको क्या एग्जैक्टली चाहिए, नॉर्मल ब्रेक चाहिए, मैनुअल ब्रेक चाहिए, पावर ब्रेक चाहिए, एयर ब्रेक चाहिए, ठीक है, दैट कम्स अंडर द ब्रेकिंग सिस्टम। देन स्टीयरिंग मैकेनिज्म, अब स्टीयरिंग मैकेनिज्म में क्या क्या वैरायटी आपने सुनी है, बताइए। पावर स्टीयरिंग, यस, पावर स्टीयरिंग इज सेकंड। हाफ स्टीयरिंग, हाफ स्टीयरिंग, ओके। एनीथिंग एल्स? There are some vehicles which do have electronic steering system. Sorry? There are some. आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। Sir, electric steering. Exactly, electric steering. So that is what I was pointing out. Electric steering ऐसे भी कुछ products है जहाँ पर electric steering है, ठीक है। So you can specify in the steering system. Then wheels and tire specifications, आपको कौन से मैन्युफैक्चरर का टायर चाहिए, कितने व्हील्स चाहिए, ठीक है, दैट यू कैन स्पेसिफाई। देन व्हाट सॉर्ट ऑफ टायर यू वांट ट्यूबलेस टायर, विद ट्यूब टायर, दैट यू कैन स्पेसिफाई। देन स्पेसिफिकेशंस में आपको
क्या साइज का, इफ यू आर गोइंग फॉर एन 4-wheeler, what will be the size, what will be the height, length, width, height, that you can specify. Then there are different things, wheel base, wheel track, ground clearance. Ground clearance मुझे इतना चाहिए, that you can also specify. Then you can specify the vehicle weight. Okay. Then curve weight is there, gross weight is there. In curve weight means the vehicle's own weight. जब पैसेंजर उस व्हीकल में नहीं है, देन उसका जो कुछ भी वेट आता है, दैट इज नथिंग बट द कर्व वेट. एंड व्हेन पैसेंजर विल बी देयर, इंक्लूडिंग पैसेंजर्स वेट, द वेट विल बी ग्रॉस व्हीकल वेट. ठीक है. देन नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ पैसेंजर्स. हाउ मच पैसेंजर्स यू नीड. 6 पैसेंजर्स चाहिए, 7 पैसेंजर्स चाहिए, या मोर देन 10 पैसेंजर्स चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू दिस vehicles may specified. Have you understood this specifications? Yes. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो आपको एग्जाम में अभी ये ऑनलाइन में पूछा जा सकता है, what are the specifications, और this is not the specification of an 2-wheeler, not. तो वहाँ पर क्या आएगा, टाइप ऑफ फ्यूल यूज. तो वहाँ पे फ्यूल यूज का ऑप्शन नहीं है 2-wheeler में. ठीक है. लाइक दिस यू कैन हैव द ऑप्शंस. ओके. Now, I hope you have understood this. Now, we will take the examples of few 2-wheeler, 3-wheeler, 4-wheelers specifications. तो उसके लिए मैंने जस्ट एक नॉर्मल डिस्कशन करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैंने सिलेक्ट किया है. ठीक है. मैं इसका कुछ भी मुझे मार्केटिंग करने के लिए पैसा नहीं मिलने वाला है. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू दिस एग्जाम्पल ऑफ एन होंडा शाइन. ठीक है. नाउ होंडा शाइन, आप में से कितने लोग ये बाइक यूज करते हैं? Yes, लोगों के पास है ये? मेरे पास. यस सर मेरे पास. I also. वेरी गुड, वेरी गुड. तो आज तक आपने ये स्पेसिफिकेशंस पढ़े हैं होंडा शाइन के? ऋषिकेश, यस बोलिए ऋषिकेश. सर मेरे पास भी है. अच्छा, आपके पास भी है, इसीलिए आपने हैंड रेज किया. ठीक है, वेरी गुड. तो आपने आज तक कभी होंडा शाइन के स्पेसिफिकेशंस पढ़े हैं क्या? No, sir. नो. No, sir. सो दीज आर व्हाट आर द स्पेसिफिकेशंस ऑफ एन होंडा शाइन. जब पिछले बार जब इसकी ऑफलाइन एग्जाम हुई थी, तो स्पेसिफिकेशंस में किसी भी एक व्हीकल के स्पेसिफिकेशंस आपको लिखने थे. ठीक है, एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस. सो किसी अभी फिलहाल तो ये आएगा नहीं आपको, बट आपको पता होना चाहिए कि 2-wheeler के स्पेसिफिकेशंस, और उसमें भी एक कोई तो भी 2-wheeler जो आपकी खुद की 2-wheeler है उसकी स्पेसिफिकेशंस आपको रट्टा मार के रखनी है. ठीक है. अगर कुछ पूछा जाए तो आप उसके ऊपर आंसर कर पाओ. ओके. सो फॉर दिस व्हाट इज द इंजन स्पेसिफिकेशन और द इंजन टाइप. सो सिंगल सिलेंडर इंजन, वहां पर एक ही सिलेंडर है, isn't it? Then it is the 4-stroke engine. So then it is SI engine. Now all 2-wheelers are SI engine only. तो ये आप कॉपी पेस्ट हर 2-wheeler के लिए कर सकते हो. ठीक है. Then this is what is the displacement. अब ये बताओ, ये डिस्प्लेसमेंट किस चीज की है? इंजन. इंजन. ये जवाब किसने दिया? ये सबसे गलत जवाब है. ठीक है. अगर किसी ने लिसन, अगर किसी ने आपसे पूछा कि आपने खाना खाया, यस खाया. क्या खाया? मैंने खाना खाया. ये कैसे बहुत जनरल जवाब है, तो वो स्पेसिफिक नहीं है. इंजन, यस इट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ एन इंजन ओनली, बट डिस्प्लेसमेंट किसका होता है? पिस्टन का. ओके. एंड सिलेंडर के अंदर जो भी वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम के बारे में ये बता रहा है. एंड दैट वॉल्यूम इज नथिंग बट दी 125 cc. ओके. नॉर्मली वी टू कॉल इट एज एन 125 cc, बट exactly it is 124.73 cc. cc stands for cubic centimeter. Okay. Then its maximum power is 10.30 psi at the rate of 75,000 rpm. Now what do you understand by this? 75,000 rpm, not 75,000, 7,500.
What do you understand by this? Rotation per minute. Rotation per minute is the Rotation long per form of minute. RPM, but ये RPM किसका है? Wheel का? Wheels. Engine. Wheel? सर वो जो एक्सल से पिस्टन जुड़ा होता है उसका पिस्टन से कुछ समझा उसकी नहीं। स्पीड ये 7500 जो RPM है, that is the RPM of crankshaft. Okay, so this is the RPM of crankshaft, not the wheel. Crankshaft जितना RPM देगा वो RPM आपको किसी बाइक के ऊपर इंडिकेटर रहता है। देखो RPM जो भी वहां पर वैल्यू होगी मल्टीप्लाइड बाय 1000, सो 0 से लेके 20 तक, मैक्स 20 तक वो इंडिकेटर दिखाता है। सो यूजुअली इट इज इन द रेंज ऑफ 4 to 5. Okay, so what is that? 4000 to 5000 RPM of an crankshaft. Okay, then next is the cooling system. Usually, or rather I will say 99% of the all two-wheelers are air cooled only. Now what do you understand by air cooled? इस इंजन को अगर आपने ठीक से देखा होगा, ओके, उसको ऐसे एक्सटेंडेड पोर्शंस होते हैं, ठीक है, शायद यहीं पर एक डायग्राम होगी, जस्ट अ मिनट, आई विल शेयर यू दैट पर्टिकुलर डायग्राम। Can you see the PPT? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. अरे किसी एक ने जवाब दिया तो बाकी लोगों को जवाब देने की जरूरत नहीं है। See. Yes, sir. This is what is the thing which I am talking about. These are called as an fins. Okay, ये fins है। ये अभी किस लिए है? These are there और these are also called as an cooling fins. Okay, ये एयर कूल्ड है। एयर कूलिंग या फिर इंजन को ठंडा करने के लिए हम लोग ये फिन्स वहां पर प्रोवाइड करते हैं। बाय प्रोवाइडिंग दिस फिन्स, व्हाट अल्टीमेटली वी आर डूइंग, वी आर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया एंड सो दैट देयर विल बी मोर हीट ट्रांसफर। ठीक है, अगर ये सरफेस एरिया अगर ऐसे रहेगा, ठीक है, और इसके ऊपर से अगर हवा पास होगी, ओके, सो whatever air will pass from this on this particular surface area, so it will absorb the heat from this surface area only. ठीक है, बट अगर ये एरिया हम लोग इंक्रीज करते हैं, ठीक है, by doing this, so what we are doing, we are increasing the area, means what, we are increasing the or we are giving opportunity to air to have more heat transfer. Are you getting me? हम लोग उसको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हीट ट्रांसफर हो। दैट इज व्हाई फिन्स आर ओवर देयर। ओके, so that is what is the cooling system. So cooling system is air cooled system. Then drive type. Now chain drive, this is what is the chain drive. What you can understand from this, from the crankshaft से rear wheel को जो पावर हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, इट इज ट्रांसफर्ड थ्रू दी चेन ड्राइव। अलग अलग ड्राइव्स के टाइप्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें से एक चेन ड्राइव है। देयर आर गियर ड्राइव्स, देयर आर बेल्ट ड्राइव्स, पुली ड्राइव्स। ओके, सो ओवर देयर वी आर यूजिंग चेन ड्राइव। देन फ्यूल सप्लाई, फ्रॉम whom we are supplying the fuel, so it is supplied through the carburetor. Clutch type, what is the type of an clutch? Multi-plate clutch. We are using multi-plate clutch, and that particular clutch is not a dry clutch, it is a wet clutch, means we are doing the lubrication or lubricated clutch we are using over there. There are two types of clutch, wet clutch and dry clutch. Dry clutch मतलब वहां पर हम लोग lubrication नहीं करते हैं, wet clutch means वहां पर lubrication हम लोग करते हैं। Then transmission, transmission में क्या है? Manual transmission means what, ऑपरेटर विल हैव, और जो भी राइडर है वो राइडर गियर सिलेक्ट करेगा, ठीक है। ऑटोमेटिक मींस व्हाट, देयर इज नो चॉइस ऑफ एन गियर सिलेक्शन। आर यू गेटिंग मी?
इन केस ऑफ एक्टिवा, Sir. एक्टिवा में आप गियर सिलेक्ट कर सकते हो क्या? नहीं. जब आपका स्पीड बढ़ जाएगा then automatically it will be changing the gear. So there is no option of selecting the gear manually, sorry, automatically. So over here it is manual one. Then gearbox, gearbox में कितने speed variations है? 5. So there are the products where we do have 4 speeds, where do we have 5 speeds. Then bore, what is this bore? जो मैं आपको कर रहा हूँ, bore कर रहा हूँ, बराबर? But in our mechanical terminology, this is the term which we are using for the diameter of an cylinder. Okay, usually we call it as an bore, but it is basically diameter of an cylinder. So its value is 52.4 mm. आप कोई भी होंडा शाइन गाड़ी ले लो, उसका सिलेंडर का डायमीटर यही होगा. ओके, देन स्ट्रोक, व्हाट इज दिस? स्ट्रोक की वैल्यू कितनी है? 57.8. बट व्हाट इज इट एग्जैक्टली? Distance between top dead center. Yes, it is the distance measured from top dead center to bottom dead center. That is what exactly is the stroke. Then compression ratio, air fuel ratio में जो compression हम लोग करते हैं, that is what it is. Then front suspension में telescopic fork, ये suspension system है. Then speedometer, so we do have option of analog speedometer, digital speedometer, both options we do have. Then length, width, height, ये option नहीं है हमारे पास, ये fixed है. Okay. Then fuel capacity, so fuel capacity is 10.5 liter, ये normal है. If we are using petrol lock अगर आप वहाँ पे लगाते हो, then fuel capacity may decrease. ठीक है. Then ground clearance मतलब जमीन से ये जो vertical distance है ये कितना है? That is nothing but the ground clearance. Weight, so weight is 120 kg. Tire size 18. So normally दोनों टायर साइज किसी भी टू व्हीलर में दोनों टायर्स एक ही साइज के होते हैं. So it can be 16, 17, 18. Normally ये साइज है. And what is the unit? Unit is inch. Okay, 18 inch वो उसका साइज होता है. Then टायर टाइप, so दो ही ऑप्शन है, ट्यूबलेस और ट्यूब विथ ट्यूब. So this is ट्यूबलेस. व्हील साइज, जो व्हील होता है ये अलॉय व्हील जो आप बोलते हो ना हमेशा, अलॉय व्हील, तो अलॉय व्हील और ये व्हील दोनों एक ही रहेगा. देन टाइप ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम, सो यूजुअली वी डू हैव ड्रम ब्रेक और अ डिस्क ब्रेक. अब यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा है डिस्क ब्रेक, बट स्पेसिफिकेशन में है ड्रम ब्रेक. यूजुअली रेयर व्हील में ड्रम ब्रेक ज्यादा चलता है, फ्रंट व्हील के लिए डिस्क ब्रेक है. But there are some products where we do have disc brake on both the wheels. Okay, so these are general specifications of an Honda Shine. Now only 1 minute left. Sir. Yes. What we will do, we will stop this meeting over here and you can rejoin the meeting immediately. Meeting rejoin करो फिर से.